غزہ میں انسانیت کا قتل عام جاری، اقوام متحدہ کے زیر انتظام سکول پر بمباری، 50 فلسطینی شہید۔ مہاجر کیمپ پر حملے میں 32 افراد شہید۔ خان یونس میں رہائشی عمارت پر بمباری میں 28 شہری لقمہ اجل بن گئے۔ مسلسل محاصرے کے بعد صہیونی فوج کا شفا اسپتال خالی کرنے کا الٹیمیٹم، مریضوں کا انخلاء جاری۔ غزہ میں 36 میں سے 26 اسپتال بند ہو گئے۔ عالمی ادارہ صحت کا صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار۔ زیر علاج افراد کو اسپتال سے نکلنے کا حکم دینا موت کا پروانہ دینے کے مترادف قرار۔ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد معیز سے مالدیپ میں ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، علاقائی تعاون کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار۔ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی مالدیپ کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ ملک شفاف انتخابات کی طرف جا رہا ہے، پیپلز پارٹی پوری طرح تیار ہے۔ الیکشن کمیشن پر پورا اعتماد ہے کہ وہ شفاف انتخابات کروائے گا۔ پیپلز پارٹی ہر طرح کے ماحول میں الیکشن لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انتخابات کے لیے ماحول سازگار ہے، الیکشن وقت پر ہونے چاہیے۔ سابق صدر آصف علی زرداری۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی ملاقات، آشیانہ اقبال ریفرنس سے بریت پر مبارکباد دی۔ قیادت اور کارکنوں نے بہادری اور ثابت قدمی سے سیاسی انتقام کا سامنا کیا۔ ایک دھیلے کا الزام ثابت نہ ہونا عوام کی خدمت کا انعام ہے۔ افسوس ہے 4 قیمتی سال سیاسی انتقام میں جھونک دیے گئے، شہباز شریف۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ 18 نومبر کو 2959 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ اب تک کل 2,35,821 غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ایک ذمہ دار اور بہترین ہمسایہ ملک ہونے کا کردار ادا کیا، جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاع پر شمالی وزیرستان میں آپریشن، دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں دہشت گردوں کا سرغنہ ابراہیم اور موسیٰ بھی شامل۔ مارے گئے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں، ISPR۔ 1971 پاک بھارت جنگ، میجر انیس احمد خان شہید کی بہادری کی کہانی۔ میجر انیس احمد خان نے دہشت گردوں کے خلاف انتہائی مشکل آپریشن میں حصہ لیا۔ آرٹلری کی امداد کے بغیر جذبہ ایمانی کے بلبوتے پر دشمن سے ٹکرا گئے۔ گھمسان کی لڑائی کے دوران دشمن کے مورچے سے 4 قدم کی دوری پر مشین گن کی گولیوں کا نشانہ بنے اور جام شہادت نوش کیا۔ بھارتی جنرل آفیسر کمانڈنگ نے بھی میجر انیس احمد خان شہید کی بہادری کا اعتراف کیا۔ پاکستان کے خلاف TTP کے ہاتھوں امریکی اسلحے کا استعمال، افغان طالبان کی جانب سے TTP کو ہتھیاروں کی فراہمی نے خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا۔ امریکی ہاؤس کمیٹی برائے خارجہ امور کے انکشافات، امریکی انخلا کے بعد $7.12 ارب کا دفاعی سامان افغانستان میں رہ گیا۔ امریکی ہتھیاروں نے TTP اور بلوچ علیحدگی پسند گروہوں کو عسکری طور پر مضبوط کیا۔ گزشتہ 2 سالوں کے دوران خطے میں دہشت گردی میں وسیع پیمانے پر اضافہ دیکھا گیا، پینٹاگون۔ بھارت میں انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں۔ 11 نومبر کو بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں 40 مزدور سرنگ کی کھدائی کے دوران ملبے تلے پھنس گئے۔ 6 دن سے بھی زیادہ گزر جانے کے بعد اب تک امدادی کارروائیاں کامیاب نہ ہو سکیں۔ سرنگ میں پھنسے مزدوروں کی صورتحال نہایت سنگین ہو گئی۔ 40 مزدور ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء سے محروم ہیں۔ انتظامیہ جان بوجھ کر ریسکیو کارروائیوں میں سستی دکھا رہی ہے، مظاہرین۔ اور بھارت آج بھی خواتین کے ساتھ جنسی درندگی میں سر فہرست۔ بھارت میں خواتین ہمیشہ سے ہی جنسی زیادتی اور تشدد کا شکار رہی ہیں۔ 2023 میں خواتین کے خلاف جنسی جرائم میں ایک سنگین حد تک اضافہ پایا گیا۔ 2021 میں خواتین کے ساتھ عصمت دری کے 4,28,278 سے زائد مقدمات، جبکہ 2020 میں 3,71,503 مقدمات رپورٹ کیے گئے، NCRB رپورٹ۔
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा और मैं हूँ उरूज फातिमा। नाज़रीन, सबसे पहले खबरनामे में बात करेंगे आज के सबसे बड़े टाकरे की, आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल की। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। खेलों में सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। दुनियाई क्रिकेट पर किसकी होगी हुक्मरानी, फैसला आज होगा। वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें अहमदाबाद में मद्दे मुकाबिल होंगी। मुकाबला दिन 1:30 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। तफसील के लिए निसार मेहदी की रिपोर्ट देखिए। क्रिकेट पर हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा? मुकाबला है 5 मरतबा की आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और मेगा इवेंट की नाकाबिले शिकस्त टीम भारत के माबेन। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल समेत तमाम 10 मैचेस जीते और फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। ऑस्ट्रेलिया ने लीग मरहले के 7 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि 2 में नाकामी हुई। सेमीफाइनल में उसने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त देकर रिकॉर्ड 8वीं मर्तबा मेगा इवेंट के फाइनल तक पहुंचने का एजाज हासिल किया। लीग मरहले में खेले गए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल में भी मद्दे मुकाबिल हो चुकी हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा मुकाबले के बाद 125 रन से कामयाबी समेटी थी। That's in the air, should be taken. The World Cup for Australia. ऑस्ट्रेलिया इससे कबल 7 बार मेगा इवेंट का फाइनल खेल चुका है, जिनमें से 5 मरतबा वर्ल्ड कप का ताज अपने सर सजाया। वर्ल्ड कप की तारीख में भारत की टीम इससे पहले 3 बार फाइनल खेल चुकी है, जिनमें से 2 मरतबा टाइटल अपने नाम करने में कामयाब रही। A magnificent strike into the crowd. 1,32,000 तमाशाइयों की मौजूदगी में पैट कमिंस ट्रॉफी उठाने का एजाज हासिल करेंगे या रोहित शर्मा अपना ख्वाब पूरा करेंगे? फैसला अहमदाबाद में होगा। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाजरीन, सदर ममलकत की अहलिया बेगम समीना अलवी पफवा चैरिटी बाजार से खिताब कर रही हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। Awareness about autism, children with disabilities, and the importance of early detection of breast cancer. These initiatives hold immense importance as they have the potential to save many lives. I personally share in the commitment to these causes as they need for increased awareness and empowering women with self-examination techniques of remain crucial. You are aware that nearly 44,000 women due to breast cancer every year in Pakistan die to late diagnosis. And you know that we all are really working only for early diagnosis, early self-examination, so we can save our sisters. Thousands of women and their families could be saved in this cancer is diagnosed at an early stage, as the chances of survival can be up to 98%. However, it is regrettable that there is a lack of awareness about the early symptoms of early symptoms of this disease in Pakistan. As a result, the disease keeps on spreading silently and proves fatal. We believe that we can change the lives of thousands of families by saving the lives of our women from this fatal disease. To achieve this goal, we started comprehensive, inclusive, and nationwide breast cancer awareness campaign. As you all know, we started from in 2019, and everyone is with me, especially the media is there. One of the major challenges before us was to convey our message as women
living in far-flung areas of our country. Most of the cancer cases in Pakistan was reported to be in the third or fourth stages, which not only made the treatment painful and expensive, but also reduced the chances of survival. Apart from this, mammography, ultrasound, and screening facilities are either lacking in a country, unfortunately, or these facilities are very expensive. Despite these challenges, with the help of Allah Almighty, we started this campaign. We reached out to the millions of mobile users across the country with the help of Bring Back Tone and messages. I'm glad to share that this year, over 140 million SMS on breast cancer have been sent to mobile users in Pakistan. Alhamdulillah, now the number of cancer cases in the third and fourth stages has decreased in different hospitals in Pakistan, while the reporting of cancer cases in first and second stages has increased. That's what we wanted. We can't eradicate the cancer, but we are trying to save our family. A public sector Islamabad-based hospital shared with us the results of their survey, which indicate that media was the biggest source of awareness about breast cancer. This awareness has increased the chances of survival of women. Now, mammography, ultrasound, and screening facilities are being provided at subsidized rates in different hospitals across the country during October, November, and December. And the number of these facilities are also increased. Similarly, the rights of persons with disability is another cause close to my heart. We have worked to shelter a misconception, foster inclusivity, promote inclusive education and rehabilitative services, and ensure equal opportunity for persons with disability. One of our aims was to bring about behavioral changes in our society towards them. We should feel them and give them respect, create sensitivity in our society towards their causes, and make them feel part of mainstream. We asked the banking sector, the business community, the Chamber of Commerce, health professionals, teachers, media, professionals, and philanthropists to support our cause. We urge them to provide skills, training, and jobs to persons with disability as part of their aptitude and skill set. We also asked international experts on disability to contribute their energies to train teachers to impart education to children with disability. We are trying to give some to develop our master trainers. We believe that children with different abilities should be given the opportunities to learn and grow with their children. This way, they would be socialized and the society would also become more aware of their special needs. We are also trying to highlight the importance of mental health and early counseling. It's a big issue. It's also a kind of taboo stigma that we don't discuss the mental issues. I believe that mind deserves as much care as the rest of your body. By highlighting this, we are taking the initial steps towards building healthier communities. We are trying to educate our people that mental health is an important aspect of our overall health and well-being. As per one estimate, almost 24 million people in Pakistan need mental health counseling and services. However, there's an acute shortage of mental health facilities and trained professionals in Pakistan. Unfortunately, we only have 500 or 600 trained psychologists and psychiatrists in our country, but we are trying. We are a developing country, inshallah, will come over. In order to overcome this shortage, we have been making efforts to connect
with trained overseas Pakistanis, professionals, and international experts. We have asked them to donate their time and expertise to train and advise people in Pakistan. Similarly, artificial intelligence, chatbots, and IT tools are being used in Pakistan to extend mental health, counseling services, and advisory to people in need. Before I conclude, I would like to appeal to the media to continue to talk about such issues and continue to create awareness through programs, talk shows, morning shows, dramas, news bulletins, and public services messages. I would also urge PAFA and the entire diplomatic community to support us in this regard and contribute generously on these causes. I'm sure that just as our collective efforts have given positive result on breast cancer, in the same way, if we continue to work, we can certainly improve the situation of persons with disability and create awareness about mental health and well-being. In the end, I once again wish to express my deep appreciation for PAFA outstanding work. I would like to express my gratitude to PAFA for inviting me to be a part of this charitable cause. I have fond memories of past charity bazaar, which beautifully showcase the colors, cultures, crafts, and arts of different nations. I eagerly anticipate another wonderful experience today. Thank you. Pakistan, Paindabad. नाज़रीन, इस्लामाबाद में पफ़ा की जानिब से सालाना चैरिटी बाज़ार की तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसे सदर ममलिकत की अहलिया बेगम समीना आरिफ अलवी खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि छाती के सरतान के हवाले से आगाही देना बहुत ज़रूरी है। मलेशिया की बाथिक एयरलाइन की पहली परवाज पाकिस्तान पहुंच गई। बाथिक एयरलाइन को जिन्ना इंटरनेशनल पहुंचने पर रिवायती वाटर सल्यूट पेश किया गया। बाथिक प्राइवेट एयरलाइन कोलालंपुर और कराची के दरमियान हफ्तावार 3 परवाजें चलाएगी। बाथिक एयरलाइन की पहली परवाज गुज़श्ता शाम 7:28 पर जिन्ना इंटरनेशनल पहुंची। नाज़रीन, मलेशिया की बातिक एयरलाइन की पहली परवाज पाकिस्तान पहुंच गई। बातिक एयरलाइन की पहली परवाज गुज़श्ता शाम 7:28 पर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची। बातिक प्राइवेट एयरलाइन कोलालंपुर और कराची के दरमियान हफ्तावार 3 परवाजें चलाएगी और बातिक एयरलाइन की जिन्ना इंटरनेशनल पहुंचने पर रिवायती वाटर सल्यूट भी पेश किया गया। नाज़रीन, गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले 44वें रोज़ भी जारी हैं। स्कूल्स, अस्पताल और रिहायशी इलाकों पर वहशियाना बमबारी से मज़ीद सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। जबालिया कैंप में कायम अक़वाम मुत्तहिदा के अल-फ़ख़ूज़ा स्कूल पर बमबारी के नतीजे में कम अज़ कम 50 फ़लस्तीनी शहीद हुए। जबालिया पनाहगज़ीन कैंप पर दूसरी बार की गई बमबारी में 19 बच्चों समेत एक ही फ़लस्तीनी ख़ानदान के 32 अफराद नुक़्मा अजल बने। सिहूनी तैयारों ने तिल अल-ज़तार के इलाके में एक स्कूल को निशाना बनाया है, जहाँ बेघर लोगों ने पनाह ले रखी थी। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी ने स्कूलों पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि बच्चों, स्कूलों और पनाहगाहों को हदफ बनाना गलत है। ऐसे खौफनाक हमले फौरी बंद होने चाहिए। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक नसीरात कैंप पर भी हमला किया गया, जिसमें कम अज़ कम 13 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि खान यूनस में सिहूनी हमले में खातून और बच्चा जाँ बहक हो गए। इसराइली तैयारों ने इंडोनेशियन अस्पताल के अतराफ में भी शदीद गोलाबारी की है। इसराइल ने गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल-शिफा का घेराव जारी रखा हुआ है। इसराइली फौज ने अस्पताल को फौजी अड्डे में तब्दील कर दिया। अरब टीवी के मुताबिक इसराइली डेडलाइन के बाद अल-शिफा अस्पताल से ज्यादातर डॉक्टर्स, मरीजों और बेघर अफराद को निकाल लिया गया है। ताहम कबल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चे और दर्जनों मरीज अब भी अस्पताल में मौजूद हैं। अल अरबिया टीवी ने कहा है कि तिब्बी सहूलियात ना होने से इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में तमाम मरीज जाँ बहक हो गए। आलमी इदारे सेहत ने अल-शिफा अस्पताल को डेथ जोन करार दिया है। आलमी इदारे सेहत ने तस्दीक की है कि गजा में 75% अस्पताल मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुके हैं, जबकि सिर्फ 11 अस्पताल जुज़वी तौर पर फाल हैं, जहाँ मरीजों के लिए इंतहाई महदूद खिदमात मैसर है।
फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनाह ने कहा है कि 15 लाख बेघर लोगों की ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं। इसराइल की जानिब से कलील मकदार में ईंधन लाने की इजाज़त दी गई जो ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है। 7 अक्टूबर से गजा पर जारी वहशियाना बमबारी में 12,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 30,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। मगरबी किनारे में भी इसराइली मज़ालिम जारी है। मकबूजा मगरबी किनारे में अब तक 212 फ़लस्तीनियों को शहीद और 2,800 को ज़ख्मी किया जा चुका है। इसराइली फ़ौज ने गजा में झड़पों के दौरान मज़ीद 2 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक की है। गजा में ज़मीनी कार्रवाई के दौरान हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 56 हो गई है। गजा में मासूम शहरियों पर वहशियाना बमबारी के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। गजा पर सफाकाना और जालिमाना हमलों के खिलाफ यमन के दारुल-हुकूमत सना में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए और फलस्तीनियों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। लबनान के जनूबी शहर नबातिया में भी लबनान और गजा पर हमलों के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। बहरीन में भी इसराइल की बदतरीन कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। स्पेन के शहर बार्सिलोना और मैड्रिड में भी सिहूनी जारियत के खिलाफ मुजाहरे हुए। मुजाहिरीन ने गजा पर हमले रोकने का मुतालबा किया। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और यूनान में भी मुजाहिरीन ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। नाज़रीन, अब आपको अपडेट करेंगे वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की माले में मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुईस से मुलाकात हुई, जिसमें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और माशी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की जानिब से सदर डॉक्टर मोहम्मद मुईस को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक करते हुए इलाकाई ताउन को फ़रोग देने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया। मुलाकात में पाकिस्तान में मालदीव के सफ़ीर की तैनाती पर भी गुफ्तगू हुई। सदर डॉक्टर मोहम्मद मुईस ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे और इस्लामाबाद में सफ़ीर की तैनाती जल्द की जाएगी। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि पाकिस्तान मालदीव के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मालदीव के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने माले में मालदीव के इस्लामी उमूर के वज़ीर डॉक्टर मोहम्मद शहीम अली सईद से मुलाकात की और नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने मुस्लिम उम्मा के मुश्तरका मसाइल और उनके हल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान मजहब और मुश्तरका मफादात पर मबनी मजबूत ताल्लुकात हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने माले में मालदीव के वज़ीर बराए इक़्तिसादी और तरक्की तिजारत मोहम्मद सईद से भी मुलाकात की। इस मौके पर तिजारत और इक़्तिसादी शोबे में दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने तिजारती सरगर्मियों में इजाफे की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था कि पाकिस्तान ख़त्ते में अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी से माले में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान ने भी मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए निगरान वफाकी वज़ीर ने कहा कि बैरून ममालिक पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया है और उनका मुल्की माशी तरक्की में किरदार लायक़ तहसीन है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात और पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा सोलंकी मालदीव का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो गए हैं। मालदीव की खारिजा उमूर की वजारत के सीनियर हुकाम ने मुर्तज़ा सोलंकी को अलविदा किया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात और पार्लिमानी उमूर जमहूरिया मालदीव के नामुंतखब सदर डॉक्टर मोहम्मद मुईस की तक़रीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए मालदीव गए थे। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है और इस बात का यकीन है कि वो शफाफ इंतखाबात कराएगा। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है और इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। मुझे पूरा यकीन है कि आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद है। कराची में साबिक रुकन सिंध असम्बली शब्बीर बजारानी के साथ होने वाली मुलाकात में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है और पीपल्स पार्टी उसके लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद सियासी जमात है जो हर तरह के माहौल में इलेक्शन में हिस्सा लेने की सलाहियत रखती है। साबिक सदर ने उम्मीद का इजहार किया कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती जमात बनकर सामने आएगी। कौमी असम्बली के साबिक अरकान कौमी असम्बली सरदार आशिक गोपांग और सरदार आमिर तलाल ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात की और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने दोनों रहनुमाओं की शमूलियत का खैर मकदम करते हुए कहा कि इज्तिमाई कोशिशों से पाकिस्तान को माशी बहरानों से निकालेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून जनूबी पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में तरक्की के नए दौर का आगाज करेगी।
لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ فلسطین کے بارے میں پاکستان کی پالیسی بہت واضح ہے، عالمی برادری کو اسرائیلی بربریت کو روکنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ علماء کرام نے آرمی چیف سے ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال اور اہم قومی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور مشائخ نے ریاستی عملداری کے لیے سیکیورٹی فورسز کے اقدامات کی تعریف کی۔ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کا استعمال بند ہونا چاہیے۔ اسرائیلی جارحیت کے شکار نہتے فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کے زیر اہتمام آج لاہور میں غزہ مارچ ہوگا۔ منصوروں میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ غزہ مارچ میں عوام بھرپور شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، بجلی، خوراک اور نوزائیدہ بچوں کو آکسیجن دستیاب نہیں۔ عالمی طاقتوں کو انسانیت کے خلاف صفاقانہ جرائم کی روک تھام کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ وائٹ ہاؤس پر مظاہرے ہو رہے ہیں، لندن میں مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان مظاہروں کا اثر نہیں ہے۔ دنیا بھر کے عوام آج غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم ان حالات میں پوری انسانیت کو، غزہ کے مظلوم عوام کا پیغام پہنچا سکتے ہیں اور پوری دنیا کی انسانیت کو اکٹھا کر کے ان مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ افغان باشندوں کی باعزت طریقے سے افغانستان واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ ان کی عارضی رہائش کے لیے مختلف اضلاع میں تمام سہولیات سے آراستہ ٹرانزٹ کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ چمن اور تورخم بارڈر پر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افغان باشندے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ غیر ملکیوں کی ملک بدری سے ملکی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز 2959 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ واپس جانے والوں میں 1052 مرد، 768 خواتین اور 1199 بچے شامل تھے۔ افغانستان روانگی کے لیے 236 گاڑیوں میں 472 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی ہے۔ اب تک 2,35,821 غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خفیہ اطلاع پر شمالی وزیرستان میں آپریشن کیا گیا۔ ESPI کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں دہشت گردوں کا سرغنہ ابراہیم عرف موسیٰ بھی شامل ہے۔ مارے گئے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ناظرین، پاک بھارت جنگ 1971 میجر انیس احمد خان شہید کی بہادری کی کہانی۔ افواج پاکستان نے 1971 کی پاک بھارت جنگ میں مشرقی پاکستان کے محاذ پر بھارتی فوج اور دہشت گرد مکتی باہنی کی صورت میں موجود مکار دشمن کے خلاف بہادری اور شجاعت کے کارنامے سر انجام دیے۔ پاک فوج کی بہادری کی کئی اندیکھی اور انسنی داستانوں میں سے ایک کہانی میجر انیس احمد خان شہید کی ہے۔ میجر انیس احمد خان نے جبان نگر میں مکتی باہنی کے دہشت گردوں کے خلاف ایک انتہائی مشکل آپریشن میں حصہ لیا۔ میجر انیس احمد خان کی کمپنی کو دریائے کوباداک کے جزیرہ نما علاقے کو مکتی باہنی کے دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن سونپا گیا۔ یہ جزیرہ نما علاقہ دریائے کوباداک میں 6 مربع میل کے علاقے پر پھیلا ہوا تھا اور مکتی باہنی کے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ تھا، جہاں سے یہ دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے کے بعد واپس آ کر پناہ لیتے تھے۔ مکتی باہنی کے دہشت گردوں نے اس جزیرے پر چاروں اطراف مضبوط دفاعی مورچے بنا رکھے تھے، جہاں مشین گنیں نصب تھیں، اور اس صورت میں یہاں تک پہنچنا ایک انتہائی مشکل کام تھا۔ جذبہ شہادت سے لبریز میجر انیس احمد خان آرٹلری کی امداد کے بغیر اور اپنے جوانوں کے ساتھ جذبہ ایمانی کے بلبوتے پر دشمن سے ٹکرا گئے۔ پاک فوج کے جوانوں نے انتہائی مہارت سے دریائے کوباداک کو عبور کیا۔ دشمن کی پوزیشن بہت مضبوط تھی اور پاک فوج کے جوانوں کو دریائے کوباداک کے 20 فٹ گہرے پانی کو عبور کر کے دشمن سے ٹکرانا تھا، لہٰذا دشمن نے شدید مزاحمت کی۔ پاک فوج کے بہادر جوانوں نے دلیری سے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بہت زیادہ جانی نقصان کے باوجود دشمن کے پاؤں اکھاڑ دیے اور مرکزی پوزیشن تک جا پہنچے۔ میجر انیس احمد خان جس دور میں میجر جنرل دلبیر سنگھ کی قیادت میں 9ویں انفینٹری ڈویژن کی پورے بریگیڈ سے آمنے سامنے آئے اور انہیں کہا گیا کہ وہ چاروں اطراف سے گھیرے میں ہیں، ہتھیار ڈال دیں۔ میجر انیس احمد خان نے بہادری سے جواب دیا کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے، اور انہوں نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ دشمن سے گھمسان کی لڑائی کے دوران شہادت کی تلاش میں میجر انیس احمد خان دشمن کے مورچے سے 4 قدم کی دوری پر مشین گن کی گولیوں کا نشانہ بن گئے اور جام شہادت نوش کر لیا۔ بھارتی 9 انفینٹری ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ نے بھی میجر انیس احمد خان شہید کی بہادری کا اعتراف کیا۔ اس مشکل آپریشن میں میجر انیس احمد خان شہید کے علاوہ 50 جوانوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ ہمارے شہداء کی یہ قربانیاں رہتی دنیا تک سنہرے حروف میں لکھی جائیں گی۔ ناظرین، پاکستان کے خلاف TTP کے ہاتھوں امریکی اسلحے کا استعمال، یہ اسلحہ کہاں سے آیا؟
امریکی ہاؤس کمیٹی برائے خارجہ امور نے بڑے انکشافات کر دیے۔ امریکی ہاؤس کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیئرمین مائیکل میکول نے کہا کہ امارت اسلامیہ ٹی ٹی پی کو پاکستان کے خلاف مسلح کرنے میں مدد فراہم کر رہی ہے۔ امارت اسلامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے امریکی بیان کی تردید کرتے ہوئے اسے بے بنیاد قرار دیا۔ ٹی ٹی پی کو ہتھیاروں کی فراہمی نے خطے کی سلامتی کو خاطر خواہ نقصان پہنچایا ہے۔ پینٹاگون کی رپورٹ نے بھی ٹی ٹی پی کا پاکستان کے خلاف امریکی ہتھیار استعمال کرنے کا راز فاش کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق 30 اگست 2021 میں امریکی انخلا کے بعد $7.12 ارب کا دفاعی سامان افغانستان میں رہ گیا۔ امریکہ نے افغان فوج کو 4,27,300 جنگی ہتھیار فراہم کیے، جس میں سے 3 لاکھ انخلا کے وقت باقی رہ گئے۔ امریکی انخلا کے بعد یہ ہتھیار امارات اسلامی کی نگرانی میں آ گئے اور بعد ازاں پاکستان مخالف گروہوں کے ہاتھوں تک پہنچ گئے۔ امریکی ہتھیاروں نے ٹی ٹی پی اور بلوچ علیحدگی پسند گروہوں کو عسکری طور پر مضبوط کیا۔ اس بنا پر خطے میں گزشتہ 2 سالوں کے دوران دہشت گردی میں وسیع پیمانے پر اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پینٹاگون کے مطابق امریکہ نے 2005 سے اگست 2021 کے درمیان افغان قومی دفاعی اور سیکیورٹی فورسز کو $18.6 ارب کا سامان فراہم کیا ہے۔ امارات اسلامیہ کے اس کھلی چھوٹ کی وجہ سے ٹی ٹی پی کو جدید اسلحہ میسر آیا، جس میں M24 سنائپر رائفل، M4 کاربائنز اور M16A4 جیسے جدید اسلحے شامل ہیں۔ امارات اسلامیہ کے سابق کمانڈروں نے رضامندی سے ان ہتھیاروں کی کافی مقدار ٹی ٹی پی کے حوالے کی۔ ان ہتھیاروں نے ٹی ٹی پی کو سرحد پار کارروائی کرنے میں مدد دی۔ اگست 2022 میں ٹی ٹی پی کی جانب سے نشر ہونے والی ایک ویڈیو میں M24 سنائپر رائفلز، تھرمل سکوپس سے لیس M16A4 رائفلز، ٹرائیجیکون ACOG سکوپس پر مشتمل M4 کاربائنز، DSHKM ہیوی مشین گنز اور T15mm ہیوی 5mm لانچر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان ہتھیاروں کے توسط سے ٹی ٹی پی نے پشاور، لکی مروت، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کی اور پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ 2022 میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں مجموعی طور پر 118 پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے۔ 2023 کے پہلے 4 ماہ میں پولیس کے 120 اہلکار ٹی ٹی پی کا نشانہ بنے۔ بلوچ لبریشن آرمی نے بھی انہی ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے فروری 2022 میں نوشکئی اور پنجگور اضلاع میں FC کیمپوں پر حملے کیے۔ 12 جولائی 2023 کو یوگ گیرین میں ہونے والے حملے میں بھی ٹی ٹی پی کی جانب سے امریکی اسلحے کا استعمال کیا گیا اور اس واقعے سے قبل 16 مئی 2023 کو ٹی ٹی پی نے چند تصاویر شیئر کی جن میں ٹی ٹی پی دہشت گردوں کو ٹریننگ کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ تصاویر میں یہ جنگجو جدید دفاعی اسلحے سے لیس نظر آتے ہیں، جس میں تھرمل ویژن والا ہیلمٹ، رائفلز اور لیزر لائٹس شامل تھیں۔ یہ تمام حقائق اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ امارات اسلامیہ نہ صرف ٹی ٹی پی کو مسلح کر رہی ہے بلکہ دیگر دہشت گرد تنظیموں کے لیے محفوظ راستہ بھی فراہم کر رہی ہے۔ ناظرین، بھارت آج بھی خواتین کے ساتھ جنسی درندگی میں سر فہرست ہے۔ بھارت میں خواتین ہمیشہ سے ہی جنسی زیادتی اور تشدد کا شکار رہی ہیں۔ NCRB رپورٹ کے مطابق سال 2023 میں خواتین کے خلاف جنسی جرائم میں ایک سنگین حد تک اضافہ پایا گیا۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق نومبر 2023 احمد آباد شہر میں 381 عصمت دری کے مقدمات اور 222 مولسٹیشن کے مقدمات رجسٹر ہوئے۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق 18 سے 30 سال کی عمر کی خواتین سب سے زیادہ جنسی زیادتی کا شکار ہوئیں۔ بھارتی ریاست کیرالہ کے ضلع ارناکلم میں 5 سال کی بچی کو ریپ کے بعد قتل کر کے کچہرے کے ڈھیر میں پھینک دیا گیا۔ بھارت کی ریاست راجستھان میں ایک پولیس سب انسپکٹر نے 4 سال کی بچی کو درندگی کا نشانہ بنایا۔ اس واقعے کے بعد عوام میں شدید غم و غصہ اور وسیع پیمانے پر BJP لیڈر کے خلاف مظاہرے اور احتجاج کیے گئے۔ NCRB کے مطابق 2021 میں خواتین کے ساتھ عصمت دری کے 4,28,278 سے زائد مقدمات، جبکہ 2020 میں 3,71,503 مقدمات رپورٹ کیے گئے۔ 2012 میں بھارت کے شہر ہریانہ میں خواتین سے زیادتی میں 27% اضافہ ہوا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق مودی سرکار خواتین کے بچاؤ میں ناکام رہی ہے۔ فرقہ واریت اور نسلی تعصب کی وجہ سے مودی سرکار ملک میں ہونے والی خواتین کے ساتھ زیادتی کو نظر انداز کر رہی ہے۔ بجرنگ دل جیسی BJP کے انتہا پسند تنظیمیں خواتین کے خلاف جرائم میں پیش ہیں۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور خواتین کے غیر محفوظ ہونے میں ہندوستان آج بھی سر فہرست ہے۔ آخر کب تک دنیا مودی سرکار کے دوکھلے پن سے بے وقوف بنتی رہے گی؟ مودی کے ہندوستان میں انسانی جان سستی۔ 11 نومبر کو بھارت کی ریاست اتراکھنڈ میں 40 مزدور سرنگ کی کھدائی کے دوران ملبے تلے پھنس گئے۔ رائٹرز کے مطابق سرنگ کی کھدائی کے دوران لینڈ سلائڈنگ کے باعث 40 مزدور ملبے کے نیچے دب گئے۔ الجزیرہ کے مطابق مزدوروں کو ملبے تلے پھنسے 6 دن سے بھی زائد گزر گئے، لیکن ابھی تک امدادی کارروائیاں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ سرنگ میں پھنسے مزدوروں کی صورتحال نہایت سنگین ہے۔ بزنس ریکارڈ کے مطابق سرنگ میں پھنسے 40 مزدور ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء سے محروم ہیں۔ ڈی وائر کے مطابق مودی سرکار اور بھارتی میڈیا غریب مزدوروں کی حالت زار پر خاموش ہیں۔ اشوک سوائن کے مطابق بھارت میں انسانی جان مزید سستی ہو گئی۔ 40 مزدوروں کو سرنگ میں پھنسے 6 دن گزر گئے، لیکن ہندوستان خاموش ہے۔ سرنگ میں پھنسے مزدوروں کی امداد کے لیے جو مشینری بھیجی گئی وہ بھی ناقص اور خراب ہے۔ امدادی کارکن کے مطابق خراب مشینری کے باعث ریسکیو کارروائیاں مزید تاخیر کا شکار ہیں۔
मोदी सरकार की इंतजामिया ने रेस्क्यू में नाकामी के बाद थाई और नॉर्वेजियन कंपनी से मदद तलब कर ली। सुरंग के बाहर मजदूरों और मकामी लोगों ने वसी पैमाने पर मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन के मुताबिक इंतजामिया जानबूझकर रेस्क्यू कार्रवाइयों में सुस्ती दिखा रही है। सिलेकारा और दंदलगांव के कस्बों के दरमियान उत्तरकाशी और यमुनावतरी को जोड़ने वाले 4.5 किलोमीटर की सुरंग बनाई जा रही थी, जो हिंदुओं के 2 मुकद्दस तरीन मकामात हैं। ये सुरंग वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मशहूर हिंदू मंदिरों के साथ चीन की सरहद से मुत्तसिल इलाकों के दरमियान सफरी हालात को बेहतर बनाने के मंसूबे का हिस्सा है। माहिरीन ने उत्तराखंड में वसी पैमाने पर तमीरात के मनफी असरात और लैंडस्लाइडिंग के खतरात के बारे में मोदी सरकार को पहले ही खबरदार किया था। भारत में तामीरात के बड़े मंसूबे के दौरान हादसात आम हैं। जनवरी 2023 को उत्तराखंड में सैलाब में 200 से ज्यादा अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। अरब न्यूज के मुताबिक माहिरीन ने सैलाब और हादसे की वजह गैर जरूरी तामीरात बताई। अल जजीरा के मुताबिक जुलाई 2023 को महाराष्ट्र में 27 अफराद लैंडस्लाइडिंग और रेस्क्यू टीम के नाकामी के बायस हलाक हो गए। जबकि भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में सियासी माहिरीन और तज्ज़ियाकारों ने कहा है कि कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा हक़ खुदरादियत के हुसूल के लिए एक जायज़ जद्दोजहद कर रहे हैं और वो इसे अपने मंतक़े अंजाम तक पहुँचा कर ही दम लेंगे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सियासी माहिरीन और तज्ज़ियाकारों ने बयानात में कहा कि सलामती कौंसिल ने अपनी मुतादिद करारदादों के जरिए कश्मीरियों के अवाम के हक़ खुदरादियत को तस्लीम कर रखा है। उन्होंने कहा कि भारत झूठे ऑपरेशंस और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के जरिए तहरीक आज़ादी कश्मीर को बदनाम करने और उसे दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने मज़लूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा। सियासी माहिरीन और तज्ज़ियाकारों ने कहा कि नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत को याद रखना चाहिए कि आज़ादी की जद्दोजहद करने वालों को दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा सकता। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत करे और जम्मू कश्मीर में रायशुमारी के इनेकाद के हवाले से अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। और नाज़रीन, फ़लस्तीन के मामले पर सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडे की असल हकीकत आश्कार हो गई है। गजा की जंग के दौरान अपने मज़मूम सियासी मकासद के हसूल के लिए अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से चंद अनासिर घनौना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक सियासी जमात के हामियों ने सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर रखी है। इस मुहिम में पाकिस्तान पर इसराइल को असलहा फराहम करने का घिनौना इल्जाम लगाया गया। सोशल मीडिया पर इस झूठी और मनगढ़ंत कहानी को भारतीय मीडिया ने खबर बनाकर पेश कर दिया। सोशल मीडिया पर एक जहाज को असलहा पाकिस्तान से इसराइल ले जाने की झूठी और मनगढ़ंत कहानी बयान की गई। हकीकत में यह बहरीन से रावलपिंडी जाने वाली परवाज अफगान महाजिरीन की बरतानवी इनखला का हिस्सा है, न कि असलहे की खेप की इसराइल मुंतकिली। पाकिस्तान ने गजा में जारी इसराइली जारियत की हर सतह पर पुरजोर मजम्मत के साथ साथ हर फारम पर आवाज उठाई है। इस सिलसिले में वजारत खारजा बारहा फलस्तीन पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुकी है कि बहुत क्लियर, बोल्ड और गैर मुबहम है। सिक्योरिटी फोर्सेस के इजलास में भी पाकिस्तान ने मजलूम फलस्तीनियों की भरपूर और खुलकर हिमायत की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मुनीर अकरम ने कहा कि फ़लस्तीनी भी इंसान हैं और उनके साथ भी इंसानों जैसा सलूक होना चाहिए। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं और गजा में शहरी आबादी के खिलाफ इसराइली हुक्काम की तरफ से ताकत के अंधाधुंध और गैर मुतनासिब इस्तेमाल की मजम्मत करते हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ भी मुतादिद बार फ़लस्तीन की हिमायत और सपोर्ट में खुलकर भरपूर तरीके से आवाज़ उठा चुके हैं। 24 अक्टूबर 2023 को फ़लस्तीनी सफ़ीर से खुसूसी मुलाकात में आर्मी चीफ ने भरपूर तरीके से गजा में जारी इसराइली जारियत की खुलकर मजम्मत की और यह बताया कि गजा में कशीदगी की सारी जिम्मेदारी इसराइल के गासिबाना कब्जे, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और मस्जिद अक्सा की बेहरमती की वजह से हुई। इसके अलावा 17 नवंबर 2023 को आर्मी चीफ के उलमा से मुलाकात में भी फोरम ने गजा में जारी जंग और फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मजालिम को इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दिया। पाकिस्तानी अवाम की फ़लस्तीनी अवाम से मोहब्बत और हिमायत में किसी को शक नहीं। पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए इमदादी सामान की 2 फ्लाइट्स भी भिजवा चुका है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। पाकिस्तान के वाज़ेह मौक़िफ़ के बावजूद सोशल मीडिया पर यहूद और हनूद की तरफ से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जारी और सारी है। ऐसे मज़मूम मनासिर मौका हाथ लगते ही कोई ना कोई मनगढ़ंत झूठ और प्रोपेगेंडा का प्रचार सोशल मीडिया पर ले आते हैं। इसी झूठ के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए यही यहूद और हनूद और इनके पैरोकार ये झूठ भी फैला रहे हैं, जो कि इंतहाई शर्मनाक और घटिया झूठा प्रोपेगेंडा है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इससे यह साबित होता है कि मुल्क दुश्मन अनासिर हर कीमत पर दुश्मन के एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए हर सतह तक गिर सकते हैं। ऐसे शरपसंद अनासिर पाकिस्तान को यहूद और हनूद के कहने पर हर तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे बचने के लिए हमें इस जहरीले प्रोपेगेंडे को पहचानना और इसकी सरकोबी करना अहम है। दर हकीकत पाकिस्तान की जानिब से इसराइल को असलहा फराहम करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। मनगढ़ंत झूठे प्रोपेगेंडा का मकसद अपने मजमूम सियासी मकासद का हुसूल और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाना है।
निगरां वफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने कहा है कि हुज्जाज कराम की सहूलत के लिए निगरां हुकूमत की जानिब से ऐसे इक़दाम किए गए हैं जिससे उनके हज अखराजात में कमी होगी और उन्हें दौरान हज बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। कराची में बिजनेस फोरम एंड थिंक टैंक की जानिब से तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि कराची मुल्क की मईशत में बुनियादी हैसियत रखता है। उन्होंने मजीद कहा कि फ़लस्तीन पर इसराइल की बर्बरियत पूरी मुस्लिम उम्मा और इंसानियत के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। पूरी पाकिस्तानी कौम मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है। निगरान वफाकी वजीर सेहत की हिदायत पर जाली अद्वियात और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और मुल्क भर में डिस्ट्रीब्यूटर्स, फार्मेसी और मेडिकल स्टोर पर छापे मारे जा रहे हैं। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक कराची में ड्राफ की टीम ने मुख्तलिफ इलाकों में फार्मेसी और मेडिकल स्टोर पर छापे मारे, जहां पर हेपारिन इंजेक्शन मंजूर 800 की बजाय 3500 रुपये में फरोख्त किया जा रहा था। इसी तरह ट्रामोल इंजेक्शन, एक्टिमेट, डिएसपेंशन, हाइड्रोलिन सिरप भी ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो रहा था। इन फार्मेसी मालिकान के खिलाफ ड्राफ एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बाग़ जिना लाहौर का दौरा किया और बाग़ के मुख्तलिफ हिस्से देखे। उन्होंने बाग़ जिना में वाक़ हज़रत मुराद शाह के मज़ार के अतराफ का भी मुआयना किया। वज़ीर आला ने बाग़ के अक़ब में गंदगी और बेतरबियती पर बरहमी का इज़हार करते हुए गैर ज़रूरी दफातर को ख़त्म करने का हुक्म दिया। निगरान वज़ीर आला ने बाग़ जिना को आलमी मयार का बाग़ बनाने के लिए अपग्रेडेशन प्लान चंद रोज़ में पेश करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि बाग़ जिना को आलमी मयार की बागात की तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा। मंडी बहाउद्दीन में जालसाजी से हत्याई गई 1 अरब 10 करोड़ रुपए मालियत की ज़रूरी ज़मीन असल मालिकान के हवाले से तकरीब में डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ और डीपीओ रज़ा सफ्तर काज़मी ने ज़मीनों के कागजात असल मालिकान में तकसीम किए। मौजूद रुकन में चंद माह कबल एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान ने मकामी रेवेन्यू एहलकारों के साथ मिली भगत करके 101 जमींदारों की 1013 कनाल जमीन जालसाजी से अपने नाम करवा ली थी। जालसाजी का पता चलने पर इलाके भर के लोग सरापा एहतजाज बन गए और रोड ब्लॉक करके एहतजाज करने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसका वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी और चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने सख्त नोटिस लिया था। मुतासरीन ने ज़मीनों के मलकियती कागजात देने पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। गैप को सुरखा मंडी बहाउद्दीन में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां मज़ीद तेज कर दी गई हैं। 1 सितंबर से जारी इस कौमी मुहिम के दौरान मंडी बहाउद्दीन में अब तक पकड़े गए बिजली चोरों की मजमूई तादाद 381 हो गई है। तमाम बिजली चोरों के कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिए गए हैं, जबकि बिजली चोरों पर आयद किए गए जुर्माने की रकम से 2 करोड़ 96 लाख 96 हज़ार वसूल करके कौमी खजाने में जमा करवा दिए गए हैं। ऐसी गैपको सर्कल मंडी बहाउद्दीन का कहना है कि गैपको की टीमें बिजली चोरी के खात्मे के लिए घर घर जाकर बिजली के मीटर चेक कर रही हैं। बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक ग्रैंड ऑपरेशन का यह सिलसिला जारी रहेगा। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अख्तर हयात खान ने मानसहरा में सीसीटीवी कैमरा से लैस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ब्रीफिंग में आईजीपी को बताया गया कि जिला भर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों, बाजारों और दीगर मकामात पर 3 से ज़ायद सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। आईजीपी ने उमायदीन और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मुलाकात भी की। क़ब्ल अज़ीं उन्होंने पुलिस शोहदा चौक यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खाने की। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अमन और अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखने और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुआशरे के हर फ़र्द को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अटक पुलिस का बड़ा इक़दाम, ख्वाजा सराव के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का आगाज कर दिया गया है। स्कीम के तहत जो भी ख्वाजा सराव अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहता है वो अटक पुलिस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस अटक के दफ्तर में आकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकता है। स्कीम के तहत ख्वाजा सराव अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सफरी सहूलियात से न सिर्फ भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल से बाइज़्ज़त रोज़गार भी कमा सकेंगे। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। 6 रोज के दौरान हजारों मुकदमा दर्ज करके सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद की जा चुकी हैं। कम उम्र बच्चों को गाड़ी और मोटरसाइकिल देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर का कहना है कि वालिदैन 18 साल से कम उम्र बच्चों को हरगिज गाड़ी मोटरसाइकिल न चलाने दे। क्रिमिनल रिकॉर्ड बनने से सरकारी नौकरी और वीजा हुसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सूबा सिंध की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में तालीमी साल 2024 में दाखिले के लिए प्री एंट्री टेस्ट दोबारा आज लिया जा रहा है। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची की ज़ेरे निगरानी लिए जाने वाले प्री एंट्री टेस्ट के लिए पूरे सूबे में 5 मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, सिंजना मेडिकल यूनिवर्सिटी, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरू, पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाबशाह और शहीद बेनज़ीर मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना शामिल हैं। इम्तिहानी मराकज़ के इर्द गिर्द 144 नाफिज कर दिए गए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाली ख़वातीन के लिए 3 रोज़ा डिजिटल मालियाती ट्रेनिंग हरीपुर में इख्तिताम पसीर हो गई, जिसकी तफसील इस रिपोर्ट में देखिए।
खैबर पख्तूनख्वा में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत डिजिटल मालियाती ट्रेनिंग के पायलट फेज का आगाज हरीपुर से कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर 25 खवातीन को जदीद मालियाती निज़ाम से मुतारिफ कराया गया है। ट्रेनिंग के दौरान खवातीन को पैसों की गिनती, बजट बनाना, करेंसी नोटों की पहचान, मोबाइल अकाउंट का इस्तेमाल, बचत करना, सरमायाकारी, मुख्तलिफ किस्म के फ्रॉड से बचने और एक जिम्मेदार शहरी होने के हवाले से आगाही फराहम की गई। यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है। मोबाइल बनाना, मोबाइल पे अकाउंट बनाना, नंबर महफूज करना सीखा है, बचत करने का तरीका सीखा है। मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे कैलकुलेटर के बारे में भी सिखाया गया है। मुझे फ्रॉड से बचने के लिए ये सिखाया गया है कि अगर किसी भी अननोन नंबर से आपको मैसेज या कॉल आए तो आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे आके उसकी शिकायत दर्ज करनी है। डायरेक्टर जनरल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा ज़ारा असलम ने ट्रेनिंग के तीसरे रोज इख्तितामी सेशन और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इब्तदाई तौर पर 275 खवातीन को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद ट्रेनिंग का दायरा कार सूबे के दूसरे अजला तक फैलाया जाएगा। खवातीन बेनिफिशरीज को जो है वो इन 3 दिनों के दौरान जो है इन तमाम बातों के बारे में समझाया गया है। हम इस प्रोग्राम को मजीद आगे लेके जाएंगे और पूरे सूबे में जो है इस तरह की ट्रेनिंग जो है उनका इनेकाद किया जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर BISP और मास्टर ट्रेनर जहांजेब अख्तर ने खवातीन को ट्रेनिंग के तमाम बुनियादी मकासद के हवाले से तफसीली आगाह किया। तकरीब के अख्तिताम पर डायरेक्टर जनरल BISP ने ट्रेनिंग हासिल करने वाली खवातीन में एजाजिया भी तकसीम किया। नाज़रीन, फ़न मुसव्वरी खित्ता भावलपुर की पहचान बन चुका है। यहाँ के फनकार मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपनी शनाख्त रखते हैं। तजरीदी मुसव्वरी के इंटरनेशनल आर्टिस्ट अली अफजल जलवाना के फनपारों की नुमाइश का आगाज किया गया है। अब्दुल्ला मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। आर्टिस्ट अली अफजल जलवाना के तख्लीक करदा तजरीदी आर्ट के फनपारों की 10 रोजा नुमाइश का आगाज हो गया है। नुमाइश में आर्टिस्ट के तख्लीक करदा फनपारों को अवेजा किया गया, जिसे देखने वालों ने बेहद पसंद किया और कहा कि इस तरह की नुमाइश आर्ट से दिलचस्पी रखने वाले शायकीन के लिए किसी नेमत से कम नहीं। ये जो आर्ट है ये आम आर्ट से टोटली डिफरेंट होता है। ये एब्स्ट्रैक्ट जो होता है ना, वो उसके जहन का एक खाका होता है कि वो जहन को किस तरह से प्रेजेंट करता है कैनवस के ऊपर। मैं बचपन से ही आर्ट में शौकीन था। मैं स्कूल में आर्ट करता था, ड्राइंग और पेंटिंग। आई थिंक आई एम द ओनली वन हु इज डूइंग एब्स्ट्रैक्ट। बहावलपुर में मुनक्ता ये नुमाइश नौजवान फनकारों के लिए यकीनन उनके फन में मजीद निखार लाने और उनमें नई जहतें लाने का बाइस बनेगी। नुमाइश 25 नवंबर तक जारी रहेगी। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। खानेवाल में वोकेशनल इंस्टीट्यूट नौजवानों को मुतादिद शोबे में हुनरमंद बनाने के बाद मुख्तलिफ कंपनीज में मुलाजमतें दिलवाने के लिए पुरहज़्म है। इस हवाले से इदारे में हुनरमंद रोजगार मेला सजाया गया। अहवाल बता रही हैं कुलसुम बशीर अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। वोकेशनल इंस्टीट्यूट में हुनर रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। इंस्टीट्यूट के तलबा और तालबात, असातिज़ा और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हुनर रोजगार मेले के इनेकाद का मकसद इंस्टीट्यूट में पढ़कर फारिग होने वाले तलबा और तालबात के लिए रोजगार के मौके पैदा करना है। इस पूरे जो है मेले का मकसद ये था कि हम एम्प्लॉयर और ट्रेनीज जो हैं उनके दरमियान जो है वो ब्रिज कर सकें उस गैप को जो कि मार्केट के अंदर मौजूद है। कम से कम आज हमारे मैक्सिमम बच्चों और तलबा और तालबात को जो है वो रोज़गार भी फराहम करेंगे और इंटर्नशिप पे भी रखेंगे। टेक्निकल लोग जब माशरे में जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा और इससे तामीर और तरक्की होगी। हम लोगों का यहाँ पे आ जाने का मकसद है VTI स्टूडेंट्स जो यहाँ से फ्री हो गए हैं उनको हमने जॉब ऑफर की है। 3 से 4 स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम 2024 के लिए हायर करेंगे। जो भी हूँ आज मैं VTI की बदौलत हूँ और मैं VTI की बदौलत में से कबीरवाल में काम कर रही हूँ। मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी के खात्मे के लिए VTI में इस किस्म के प्रोग्राम का इनेकाद खुशाइंद है। कुलसुम बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खानेवाल। लाहौर प्रेस क्लब में 3 रोज़ा किताब मेला जारी है, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शकील मलिक। कहते हैं कि किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त है। किताब इल्म और अदब का ऐसा समंदर है जिसकी हर मौज अक्लो दानी से मुज़य्यन होती है और इल्म का मुतलाशी इस बहरे बेकरार में उतरे बगैर इसमें छुपे खजाने को हासिल नहीं कर सकता। दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बढ़ते हुए रुझान के बावजूद किताब की अहमियत मुसल्लिमा हकीकत है। लाहौर प्रेस क्लब में 3 रोज़ा किताब मेले का मकसद इंसान और किताब के दरमियान मौजूद रिश्ते को मजबूत करना और कुतुबीनी के रुझान में इजाफा करना है। किताब मेले में मुतादिद स्टॉल लगाए गए हैं जिनमें मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने अपनी किताबों को डिस्प्ले किया है। लाहौर जो कि एक अदब का और कल्चर का शहर है,
यहाँ इस तरह के किताब मेले जो हैं ये इस लाहौर का हुस्न है, इसकी सकाफत का हुस्न है। किताब मेले में साइंस और टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेज, अदब, फनून लतीफ़ा और हर किस्म के मौज़ूआत पर किताबों की वसी वैरायटी मौजूद है। 3 रोज़ा मेला है और ये हर साल लगता है और इसी मौसम में लगता है। सहाफत के शोबे से वाबस्ता अफराद और उनके अहले खाना ने किताब मेले का दौरा किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स में रखी गई किताबों के मेयार को सराहा। बुक फेयर में न सिर्फ किताबों की वसी वैरायटी को दस्तयाब किया गया है बल्कि इनकी कीमतों में पुरकशिश रियायत भी दी गई है। इस तरह के बुक फेयर जहाँ कारी की इल्मी और तहकीकी जरूरियात को पूरा करने में मुआवन होते हैं, वहाँ मुआशरे में किताब की अहमियत को फरोग देने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बैतुल खला का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद अवाम में हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक आगाही पैदा करना है। शिराज दुरानी की रिपोर्ट देखते हैं। आलमी इदारा सेहत और यूनिसेफ के मुताबिक दुनिया की तकरीबन निस्फ आबादी यानी 4 अरब लोगों को अपने ही घरों में बैतुल खला की सहूलत दस्तियाब नहीं। दोनों इदारों के आदाद शुमार के मुताबिक 85 करोड़ अफराद अब भी रफ़ा हाजत खुली फिजा में पूरी करने पर मजबूर हैं। इस सूरत हाल में हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर हर साल 4 लाख के करीब मजदूर दम तोड़ जाते हैं। पाकिस्तान की तकरीबन 30% आबादी महफूज बैतुल खला और मुनासिब सैनिटेशन की सहूलियात से महरूम है। अफराद का ज़ाती सतह पे भी फ़र्ज बनता है कि वो अपने घरों को साफ़ सुथरा रखें और घर में बैतुल खला का साफ़ सुथरा इंतज़ाम करें। ज़्यादा आबादी देहातों में रहती है और वहाँ इस चीज़ का तस्वुर नहीं है। बैनुल-अक़वामी इदारे भी इस बात पर तवज्जो दें कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बैतुल खला की अहमियत के बारे आगाही दी जाए ताकि हम अपने मुआशरे को साफ़ सुथरा और खूबसूरत बना सकें। पंजाब और सिंध के देहात में आज भी 1 करोड़ के करीब खवातीन को रफ़ा हाजत के लिए अंधेरा होने का इंतज़ार करना पड़ता है, जिससे उनकी सेहत मुतासर होती है और उनके जिस्म में बीमारियां पनपने लगती हैं। खेत खलियानों, रेलवे लाइन या रेतले टीलों का रुख करने वाली खवातीन को जिनसी ज्यादती का चैलेंज भी दरपेश होता है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए ज़रूरी है कि आलमी इदारे तरक्की पजीर ममालिक की मदद करें। इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर ऐसी कोशिशों के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। आज़ाद कश्मीर मौसमियाती तब्दीलियों की जद में आने वाले इलाकों में शामिल है, जिससे ज़राअत और लाइव स्टॉक का शोबा भी मुतासिर हो रहा है। मुजफ्फराबाद से अदील अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। आज़ाद कश्मीर मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले इलाकों में 5वें नंबर पर है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में मौसमियाती तब्दीलियाँ तेजी से रोनुमा हो रही हैं। कभी बारिशें होती है तो लगातार बारिशें ही हो रही हैं, अगर बारिशें नहीं हो रही तो बहुत तवील अरसा आप देखते होंगे कि खुश्की का गुजरता है और इससे हमारी जो फसलों का पैटर्न है, जिस तरह हमारी फसलें जो पूरे साल का गल्ला जमा होता था, अब वो भी मुतासर हो रहा है। बेवक्त की बारिशों की वजह से या बेवक्त के बर्फ़ की वजह से जो हमारा लाइफ स्टॉक है वो बुरी तरह डिस्टर्ब होता है। यानी लाइफ स्टॉक का जो वक्त होता है ग्रेजर में जाने का, उस वक्त में अगर वहाँ पे बर्फ़ हो जाए तो ग्रेजर्स पे वो बुरी तरह यानी चरागाहों में बुरी तरह मुतासर होते हैं, तो उनको फौरी तौर पे वापस करना पड़ता है। कई इलाकों में चश्मे खुश्क होने लगे हैं, बालाई इलाकों में ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं और हर साल सैलाब का आना मामूल बन चुका है। पहाड़ी इलाकों में ज़मीन के सरकने और कटाव जैसे संगीन मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। चाहिए हमें सियासत और बाकी सब बातें भूल जानी चाहिए। इस वक्त जो है वो एक तबाही खुदा न खास्ता हमारे दरो दीवार पे दस्तक दे रही है कि अगर हमने अपने आदातों इतवार तब्दील ना किए और हमने कोई बड़ी जो है वो कोई बड़ा इंसानी अलमिया या सानिहा रुनमा हो सकता है। माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में वक़ू पज़ीर होने वाले मुज़िर असरात से निमटने के लिए जामे और मरबूत हिकमत अमली के तहत मुस्तक़बिल में माहौल दोस्त सरगर्मियाँ अपनानी होंगी। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। लाहौर शहर आज भी फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर है। शहर में स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से इक़दाम जारी हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मौज़मुद्दीन से। जी मौज़म, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी के लिहाज से दुनिया भर में आज लाहौर शहर दूसरे नंबर पर मौजूद है। लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 301 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर शहर में स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने लाहौर शहर में स्मार्ट लॉकडाउन का भी नफाज किया है। अगर मेरे पीछे देख सकें तो इस समय लाहौर शहर की बड़ी ही मसरूफ़ मार्केट है, ये मिंटगुमरी रोड है, यहाँ पर गाड़ियों की मार्केट है, ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री, जबकि कम से कम
14 डिग्री रह गए, जबकि हवा में नमी का तनासुब 58% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसम का कहना है कि अगले एक हफ्ते तक लाहौर शहर में बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तभी माहिरीन का ये कहना है लाहौर शहर की जो फिजा है वो बहुत ज़्यादा आलूदा है। लाहौर शहर के शहरी जो उसकी वजह से आंखों की और गले की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो लाहौर शहर में स्मॉग का राज बरकरार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और शिमाली इलाकों में सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूं रही। सबसे पहले बात करेंगे लेह की। यहाँ कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -2, कालाम -2, गोपस और हुंजा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।